So the next section would be taken by Dr. Gaur Gopal Manik. Sir is an associate professor in the Department of Accountancy, Guwahati Commerce College, Assam. He has also worked as deputy director for Institute of Distance and Open Learning, Guwahati University for almost 1 year on deputation. His education qualification include M.Com, Accountancy and Taxation, MA English, Nipun, Voice Music, LLB, ICWA and PhD. He has also already completed his 3 years articleship training of Chartered Accountancy course under the Institute of Chartered Accountants of India and passed a group of intermediate exams. He is also a recognized PhD guide in the Department of Commerce, Guwahati University. Under his guidance, 6 research scholars have already been awarded PhD degree and 6 other scholars have been pursuing PhD research under his supervision. Sir has also authored many books such as Waiting, which is an English poem book, Sandwich, which is a Bengali novel, Jibana Saregama, which is a Bengali novel, Jiboshma, which is a Bengali short stories book. Then there is Disconcernment, जिसकी एक कॉपी सर ने मुझे भी दिया आज सुबह मॉर्निंग में, थैंक यू सो मच सर. उसके बाद there is a book called Captain of Soul. Then sir has also co-authored so many books such as Luke Parir Kahini, Corporate Accountancy, Accountancy for HS first year, Accountancy for HS second year, Investment Management, E-filing of returns and Fundamental of Accountancy. So इतनी बुक्स मैंने पढ़ी नहीं है जितनी सर ने लिखी है. So that shows what a personality he is, and we are truly honored that sir has agreed to grace the occasion with his presence. And I will suggest you कि आपके जितने भी सवाल है कॉमर्स की फील्ड के बारे में, करियर के बारे में, सर से प्लीज सेशन के बाद पूछिए, because we will never find a better resource person than him. बाद में ढूंढने से भी नहीं मिलते. और मतलब गिनती भी करने लग जाए, जिस फील्ड में भी आप करियर बनाना चाहे उस फील्ड में सर ने डिग्री कर रखी है. ठीक है. सर आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेक द सेशन. थैंक यू सो मच सर. Yes. How are you all? So I am this. Okay? I will be going very informally with the students of Commerce and Arts Society. Even science students are there, no problem. Because the lecture will ultimately attract the science students and art students also to commerce, if they wish. इंग्लिश में बोलना है, हिंदी में बोलना है, और दोनों में बोलना है, दोनों बोलना है. ओके, लिसन वन थिंग, कि अभी किसको पूछता हो ना तुम कॉलेज में एडमिशन लिया किस में, आर्ट्स में और साइंस में, एक सवाल आता है. कोई नहीं पूछता है कॉमर्स में लिया है या नहीं लिया है. ये कॉमर्स का हल. असम में क्या होता है, 6% of the students who pass 10th standard come to commerce, 62% goes to arts, and 25 around come to science. This in Assam. I don't think Arunachal Pradesh is much different than that. जो भी है, आप लोग कुछ स्टूडेंट इधर डांस का परफॉर्म किया था, फिल्म का सॉन्ग लिया था, राइट? We all enjoyed. मैं भी फिल्म देखता हूँ. कभी कभी फिल्म में जो पहले when there was intermission something like that, सिनेमा हॉल का अंदर में भी मैं प्रैक्टिस बड़ा किया करता था. Anyway, फिल्म से डायलॉग से शुरू करूंगा आज. फिल्म का नाम है, आप लोग हिंदी फिल्म यूज किया, हिंदी सॉन्ग यूज किया, why shall I not? फिल्म का नाम है दिल ही तो है, जैकी श्रॉफ स्टीयरी. उसका एक डायलॉग से शुरू करूंगा and we shall connect it. उस डायलॉग ही मेरा याद है, स्टोरी पता नहीं है. दिल ही तो है बोला था सिनेमा का नाम. डायलॉग ऐसे था, अभी सामने और मोहन सर सुखोई पायलट, कितना इंस्पायरिंग बात आप लोग को बोला है. पहले और एक सर बोला इंस्पायरिंग बात, एंड एवरीबॉडी मिनिस्टर सर एंड एमएलए दे हैव सेड सो इंस्पायरिंग थिंग्स. सर मिला के ये डायलॉग बहुत कुछ कहना है जिंदगी में. एंड कैप्टन गौरव जी, ही हैज रिटन अ बुक गिवन टू योर करियर गाइडेंस, और सब मिला के ये डायलॉग ऐसे था, जैकी श्रॉफ ने बोला था, व्हाट यू वांट टू बी, बी व्हाट यू वांट टू बी, एंड if you want to be what you want to be, believe what you want to be. कैसा का डायलॉग? कंफ्यूज? once again, what you want to be what you want to be, and if you want to be
what you want to be, believe what you want to be. आपको जो करना है वही करिए, अगर वो करना है तो आपको विश्वास रखिए खुद का ऊपर। पहले धर्म का मीनिंग ऐसे था पहले कि इफ यू हैव फेथ इन गॉड उसको बोलता है आस्तिक, एंड इफ यू डोंट हैव फेथ इन गॉड उसको बोलता है नास्तिक। स्वामी विवेकानंद, his name was pronounced here also by the other speakers, minister. He said, if you do not have faith in God, you are not Nastic. If you do not have faith on yourself, then you are Nastic. So you have to faith on yourself. खुद पे विश्वास रखना है. Everybody says it, and when I was listening to Sir's lecture, even I was getting inspired. So हम आगे चलते हैं कॉमर्स में के आज ब्रीफ में एक आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन करो। देयर आर सम कॉमर्स स्टूडेंट आल्सो। बहुत पहले इन द संस्कृत इन उपनिषद ऑन दिस वाज रिटन, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक दिस वाज रिटन इन द माइथोलॉजी ऑफ इंडिया। क्या लिखा था? वाणिज्य बसते लक्ष्मी तदर्थम कृषि कर्मणि तदर्थम राजसभायां भिक्षायां नैव नैव च। मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ। द गॉडेस ऑफ वेल्थ लक्ष्मी लिव्स इन कॉमर्स। पहले बोला वाणिज्य में कॉमर्स। हाफ ऑफ दैट कम्स इन एग्रीकल्चर एंड हाफ ऑफ दैट कम्स इन गवर्नमेंट सर्विस एंड हाफ ऑफ एंड इन बेगिंग नथिंग। So this was explained by our Muni Rishis thousands years back. From that you can trace back the source of commerce कितना important है। I am not saying that science, arts, other things are not important. मैंने जो कॉमर्स लिया था तो मुझे पता ही नहीं था कॉमर्स क्या होता है। I took commerce only because I did not have 80 rupees to purchase biology box because I want to become doctor. I didn't have money. So किसी ने बोला अरे कॉमर्स में इतना पैसा नहीं चाहिए, so कॉमर्स में आ गया। अब मुझे पता चला कॉमर्स क्या है। Now, and many of my friends, they did not come to commerce. I am not comparing, but what is commerce? After my experience, I will be explaining that today. वही सब मैं एक्सप्लेन करके जाऊंगा। देखिए आज कॉमर्स क्या है, आज का डेट में कॉमर्स क्या है। एक लाइन आपको बताएगा व्हाट इज कॉमर्स। यू कैन रीड दैट सेक्टर स्टूडेंट्स कैन नॉट रीड आई थिंक, बट आई कैन रीड फॉर यू। Commerce has traveled from camel to email. बहुत बढ़िया डायलॉग है। कॉमर्स मैंने बोला था वाणिज्य बसते लक्ष्मी, वो तो संस्कृत का था, थाउजेंड्स ऑफ बैक, बहुत पहले का बात था। उस टाइम में कॉमर्स करते थे ना वो बिजनेस कैमल में कैरिंग, और आज ईमेल में। कैसा लगा डायलॉग? ईमेल से भी आगे चला गया, वो अलग बात है, लेकिन एक डायलॉग सुनने में, बोलने में, समझाने में। और ट्रेवलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स कॉमर्स, हजारों साल पुराने का जो ट्रेवलिंग है कॉमर्स का, उससे एक लाइन में पता चलता है। जो कॉमर्स का बच्चे है तो प्लीज अंडरस्टैंड, जो साइंस का बच्चा है, जो आर्ट्स का बच्चा है, हो सकता है एक दिन आपको ऐसे मन में आए कॉमर्स ले लो एंड डोर्स आर ओपन, डोर्स आर ओपन। कॉमर्स हैज ट्रेवल्ड फ्रॉम कैमल टू ईमेल। अच्छा लगा? अच्छा लगा। देखिए 10 स्टैंडर्ड या 12 स्टैंडर्ड पास करने के बाद में बहुत सारे ऑप्शंस है, कुछ भी ले सकते हैं, आर्ट्स, साइंस और बहुत कुछ है। और कैप्टन गौरव सर का बुक में देख लीजिए, बहुत सारे ऑप्शन है, उसके बाहर भी है। But commerce is a versatile course, but many people do not know still now. Why I am saying many people do not know? Because in Assam, I belong to Guwahati Commerce College and Guwahati University, but Guwahati Commerce College has a large number of students of commerce. Many of the boys and girls of Arunachal Pradesh take admission every year in our college. I know them, but only 6% of the students who come 10th standard in Assam come to commerce. Others go to arts and science. I don't know the reason why, but I have to show that there are lots of avenues in commerce. और क्या क्या है आज हम लोग देखते जाएंगे। Wide area of career choices in commerce, छोटे से बड़े तक, एकदम नीचे है, एकदम ऊपर है, टॉप में है, कहाँ कहाँ हो सकता है, एकदम जमीन से आसमान। I am going to show you in very few minutes. I am going to show you. If you are inspired, I will be very happy. देखिए कैरियर पॉसिबिलिटी, ये सब आज में डिस्कस करके 3 पॉइंट गौरव जी मुझे दिया था जैसे सर, अगर 3 पॉइंट में बात करिए हमारे बच्चों से, ये 3 पॉइंट हाथ में लेके बच्चे, तो मैंने 3 पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना लिया। क्या है पॉइंट? देखिए कैरियर पॉसिबिलिटी, कॉमर्स में क्या क्या कैरियर पॉसिबिलिटी है, और कॉमर्स लेंगे तो क्या क्या है। एक और फील्ड विच ऑप्शन लीड्स टू
कोई भी एक फील्ड, देखिए बहुत फील्ड है कॉमर्स में, तो कोई भी फील्ड में हम जाने से कहाँ जा सकता है, कहाँ जा सकता है, कहाँ जा सकता है। सपोज अपने एयरपोर्ट है, वहां से इधर जा सकता है, उधर जा सकता है, उधर जा सकता है, उधर जा सकता है, लेकिन कॉमर्स में से कहाँ कहाँ जा सकता है। एंड लास्ट में मैं एक बात थोड़ा सा प्रिंसिपल ने बोलूंगा कि शुरू कैसे करे, कहाँ से करे। जैसे मिनिस्टर सर बोला था और मेनी स्पीकर्स कि हम लोग को तो ऐसे कैरियर गाइडेंस होता ही नहीं था, हम लोग का टाइम में देयर वाज नो कैरियर गाइडेंस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। हम कुछ मिला तो मेरा पैसा नहीं था इसलिए कॉमर्स में आ गया। आई डिडंट हैव मनी टू परचेज बायोलॉजी बॉक्स, 80 रुपीस था, तो मैं कॉमर्स में आया, दैट वाज द रीजन। एंड मेनी पीपल विदाउट नोइंग दे came because they did not get admission in science or maybe they are not having good marks, anything. लेकिन with consciously knowing what is commerce, हम कहाँ जाएंगे, जा सकते हैं, knowingly कितना जाते हैं, very few. इसी के लिए ये जो ऑर्गेनाइजर्स, ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर कैप्टन गौरव जी जो भी किया है हम लोग के लिए ये प्रोग्राम, रियली वी सैल्यूट देम बिकॉज दे हैव डन इट फॉर आने वाला जो बच्चों है, फ्यूचर जनरेशन, नेक्स्ट जेन क्वेस्ट। यू हैव टू क्वेस्ट, द लाइफ इज अ क्वेस्ट फॉर होम, द नेक्स्ट जनरेशन। सो देखिए कॉमर्स में क्या क्या, वेरी सिंपल, इज ए गेटवे इन द बिजनेस ऑफ बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, ट्रेड। कुछ भी करना है तो कॉमर्स का नॉलेज आपको हेल्प करेगा, कुछ कोई भी जगह में आपको ले जाएगा कॉमर्स। थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ है इसमें, कॉमर्स में थ्योरी है, प्रैक्टिकल है। पहले इसे पता था कि कॉमर्स में साइंस ओनली means software and other things. No, commerce means without software, without science, you cannot do anything modern days. Those things are there. So both practical and theory, these things are there, and these are the broad areas: business, finance, economics, trade. थोड़ा मैं पॉइंट लिख दिया जहाँ कॉमर्स आपको खींच के ले जाएगा शुरू करने से। फिर देखता हूँ एट द एंड अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आई विल बी ओपन फॉर दैट। इसमें यू कैनॉट रीड कॉमर्स में कितना वेराइटीज ऑफ कोर्सेज हो सकता है, मैं इसमें बनाया, बट पीछे जो है देख नहीं सकते, बट आई कैन रीड आउट क्या क्या हो सकता है कॉमर्स में। कॉमर्स लेने से देखिए यू कैन बिकम चार्टर अकाउंटेंट। चार्टर अकाउंटेंट क्या है थोड़ा बाद में बोलता हूँ। यू कैन बिकम ओनली बीकॉम पास कर लीजिए, बीकॉम का बाद आप एमकॉम करिए, एमकॉम का बाद आप रिसर्च करो, पीएचडी करो, प्रोफेसर बन जाओ, वो भी एक है। अब रिसर्च करने से जो प्रोफेसर बनेगा ओनली, इससे कोई बात नहीं है। If you know business research, market research, commerce research, then you can be employed by multinational companies, because in multinational companies there is a department, उसको बोलता है R&D, research and development department. अब तो पढ़ाई में आएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, research and development, उसमें नौकरी मिल जाएगा। Why? कोई बोलते हैं ना sky is the limit, and I said even sky is not the limit, beyond that, इससे भी बाद में उसका भी बाद में इसका है। और क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट से हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटिंग कर सकते हैं, और बैचलर ऑफ बिजनेस से बीबीए कर सकता है, बीबीए ओपन है। फिर इकोनॉमिक्स में चला जाता है, वहां से इकोनॉमिक्स उसमें बहुत है। अभी वो इकोनॉमिक्स बिजनेस एनालिस्ट से आपको एक्सेंचर लाइक इससे कंपनी जो है अमेरिका में इधर ऑल ओवर वर्ल्ड, उसमें आपको बिजनेस एनालिटिक्स का काम नौकरी मिल जाएगा। एंड माइट बी यू आर वर्किंग एट द ऑफिस ऑफ सीतारमन जी, फिनेंस मिनिस्टर ऑफ सेंटर, उनको बहुत इकोनॉमिक एनालिसिस चाहिए, चार्टर अकाउंट चाहिए, हो सकता है उधर रिसर्च आपको मिल जाएगा। मींस व्हाई द स्काई इज नॉट द लिमिट। आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी दे सकता है। यू कैन गो फॉर इन्वेस्टमेंट बिजनेस, स्टॉक एक्सचेंज, कैसे शेयर खरीदेगा, कब बेचेगा, ये सब भी सिखाता है कॉमर्स में। आपको चूज, यू कैन गो फॉर लॉ। अब लॉ कर दिए, यस आर्ट्स करके भी लॉ कर सकता है, साइंस करके भी लॉ सकता है, कर सकता है, अलग बात है, बट आई एम टॉकिंग इन फ्रंट विद द कॉमर्स इन फ्रंट ऑफ मी। यू कैन गो फॉर लॉ। व्हेन यू आर बीकॉम प्लस लॉ, then you will be absorbed by multinational companies and legal advisor, legal sales. It's a commercial law. It's very, very important thing. You can go for hotel management. Very important. See, tourism is very important all over the world. In Arunachal Pradesh, if there is more tourism, is good for the state. In Assam, more tourism good for the state. So tourism, hotel management, all these things can be done with commerce knowledge. Commerce knowledge is essential for this. जर्नलिज्म में जा सकता है। और एक बात सर ने अभी इतना अच्छा से समझाया, मैं उस तरफ नहीं जाएगा, लेकिन द वर्ल्ड कौन सा मोन्टो सर सुखोई पायलट सर इधर आए थे ना, वो सर ने आई वाज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय स्पीच। सर ने बोला था एंटरप्रेन्योरशिप,
अब एंटरप्रेन्योरशिप करना है, एंटरप्रेन्योरशिप करना है, उसमें भी कॉमर्स का नॉलेज है। अब कॉमर्स में हम एंटरप्रेन्योर सिखाते हैं। वी आर हैविंग टॉपिक, सब्जेक्ट्स, ब्रांचेस, मेजर, एवरीथिंग एंटरप्रेन्योरशिप कैसे होना है, ये कॉमर्स में है ये सब। एंड इफ यू वांट वन लाइन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, एक लाइन में बता दूं, मेरा बहुत इच्छा हो रही बताने के लिए रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप विद द वर्ड ओनली, विद द वर्ड, ये पीपीटी में नहीं है। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप ये वर्ड आता है ग्रीक से, फिर इंग्लिश, फिर इंडियन लैंग्वेज से आ गया, लेकिन इसके पहले ये संस्कृत में था। संस्कृत में क्या था मैं बताता आपको, मैं बोलता हूँ एक वर्ड, अंतःप्रेरणा। अंत मीन्स अंदर, प्रेरणा इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन फ्रॉम इनसाइड, अंतःप्रेरणा। अंतःप्रेरणा 10 बार बोलो, अंतःप्रेरणा, अंतःप्रेरणा, अंतःप्रेरणा हो जाता है। एंड यस, इन एंटरप्रेन्योरशिप यू शुड हैव समथिंग फ्रॉम इनसाइड, अंदर से कुछ आना है। एनीवे, इसका डिटेल में नहीं जाता हूं क्योंकि मैं टॉपिक है नहीं है, बट वी कैन अंडरस्टैंड। एंड देखिए, यू कैन गो फॉर यूपीएससी, सर ने किया है, यूपीएससी मैडम ने किया है, डीसी मैडम ने आईएएस किया है, उसमें भी जा सकता है। और यूपीएससी में सर मुझसे ज्यादा जानता है जितना एलाइड सर्विसेज है, आपको कुछ भी मिल सकता है, बट देयर आर सर्टेन एलाइड सर्विसेज, मैंने थोड़ा सा नोट किया, और डायरेक्टली कॉमर्स से रिलेटेड है। देखिए ऐसे नहीं, सो आप कॉमर्स चूज करके अब अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई कर सकता है, एग्जाम दे सकता है, जैसे सर ने बताया, और किसी और भी। एंड यू कैन गो फॉर यूपीएससी आल्सो, यू कैन गिव योर चॉइस ऑप्शन कॉमर्स, यू कैन गिव कॉमर्स इफ यू नो कॉमर्स इज ओपन देयर। सो दीज आर द सब्जेक्ट्स, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट, देखिए अकाउंट्स ही है, इंडियन ट्रेड सर्विस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज, कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज, सो दैट कॉमर्स नॉलेज लॉ विल बी हेल्पिंग यू। इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, रेलवे अकाउंट सर्विस, सब में देखिए अकाउंट्स कैसे लगा हुआ है, हर जगह में अकाउंट्स लगा हुआ है। आई एम नॉट सेइंग दैट पीपल कमिंग फ्रॉम नॉन कॉमर्स ब्रांच कैन नॉट डू इट, दे आल्सो कैन डू इट, बट आई एम शोइंग यू दैट कॉमर्स पीपल आर हैविंग डायरेक्ट लिंकेज विद दिस थिंग्स। जस्ट क्लिक वन, प्लीज क्लिक, या इसको लेने दो। सो वो हम बताया था कि कैरियर ऑप्शन, सर ने बोला था क्या क्या ऑप्शन आप बता दीजिए। मैं बहुत शॉर्ट में बताया, बट आई एम फ्री फ्रॉम फॉर योर क्वेश्चंस। किसी ने पूछेगा बाद में अगर मैं उसको जवाब देगा, अभी मैं इसे प्रेजेंटेशन पर से कर लेता हूँ। सो क्या क्या ऑप्शन है, मैं आपको बहुत लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑप्शन दिखा दिया कॉमर्स में, राइट। अभी व्हिच ऑप्शन लीड्स टू व्हिच फील्ड, कौन सा एयरपोर्ट से कौन सा जगह में जाएगा, और रूट्स अभी थोड़ा मैं ब्रीफ में बताना चाहता हूँ। एंड एट दिस स्टेज एट 12th स्टैंडर्ड आई थिंक स्कूल स्टूडेंट्स आर आल्सो देयर, जो 10 पास के लिए वही आंसर इसमें 11 12 ओके 11 12 जो है ना, दिस इज द लॉन्चिंग पैड। इस टाइम में आपको सोचना है एंड यू हैव टू गो अहेड, प्लानिंग करना है। सर को भी इतना नहीं मिला था ये इंस्पिरेशन, आई मीन फैसिलिटी कि किसी ने गाइड करे, हमको भी नहीं मिला था। सो वी आर डूइंग, सर हैज डन इट, डीसी मैडम। सो देखिए, each of the path offers exciting opportunities, and moreover the demand for professional commerce is constantly growing. कॉमर्स में छोटे में भी रहो, बड़ा में भी जाओ, और कॉमर्स का डिग्री का जो डिमांड है वो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, सिर्फ असम, सिर्फ इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोबल। आपने डेबिट क्रेडिट सिखाया ना कॉमर्स स्टूडेंट, डेबिट योर कम्स इन, क्रेडिट योर गोज आउट सिखाया ना सर, वो तो ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही है। In 1494 लुका पेसियालो इन इटाली ही इंट्रोड्यूस डेबिट एंड क्रेडिट। अभी इंग्लिश अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच दो है। वो जो रूल है डेबिट एंड क्रेडिट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। इफ यू लर्न कॉमर्स इन अरुणाचल प्रदेश, might be you are working in USA someday in some company, so that is worldwide. If you are a chartered accountant here in India, you can use it in anywhere in the world. If you are cost and management accounting in India, you can use it anywhere in India, in the world. चार्टर्ड अकाउंट्स इंस्टीट्यूट जो है ना, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, दे आर हैविंग ब्रांचेस। फ्यू इयर्स बैक ऐसे था कि 42 कंट्रीज, अभी कितने बार पता नहीं है, 42 कंट्री में ब्रांचेज है इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। एंड एप्लीक करो, यस। देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या हो सकता है, सब कोर्स के बारे में 30 सेकंड में बोल रहा हूँ, लेकिन बाद में आप क्वेश्चन पूछने से मैं रेडी रहेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या हो सकता है, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, ये आपका प्रोफेशन होगा। यू शुड बी अकाउंटेंट, यू शुड बी ऑडिटिंग यू नो, चेकिंग वेरिफिकेशन द अकाउंट्स, एंड यू कैन गो फॉर टैक्सेशन, इनकम टैक्स, ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स,
आज तो सब ई फाइलिंग है। मेरे क्लास का तो बीकॉम में ना 3rd सेमेस्टर में आई टीच ई फाइलिंग प्रैक्टिकली इज इन द कोर्स ऑल्सो, बट आई टीच देम इन सच ए वे दैट दे कैन रजिस्टर देमसेल्फ और एनीवन एल्स। अगर आप ई फाइलिंग इनकम टैक्स सीख लिया ना बीकॉम पास करने का पहले ही, तो एंड सपोज बिजनेसमैन आर देयर, they don't have money to go to chartered accountant for income tax filing, you do this work and get 2,000 rupees. I'm just saying, even that is possible. Then GST, goods and services tax, पहले तो बहुत सारे टैक्स था, indirect taxes, 17 types of indirect taxes are in India, but 1st of July 2017 में क्या आ गया? GST. So taxation लेके career बना सकता है आप through commerce, through chartered accountant. They are highly respected profession. They go for audit, financial accounts, and after passing BCom, you can join chartered accountancy. After passing 12th standard, also you can join chartered accountancy or even cost accountancy. You can go for BCom. BCom में क्या सिखाता है? देखो ये सब सिखाता है. Nobody has passed gone for BCom here. So you see what are the things you are going to learn in BCom. क्या क्या सीखना है? देखो accounting, finance, banking, टैक्सेशन, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, ये सारे चीज बीकॉम में सिखाया जाता है. यू आर गोइंग टू लर्न दिस थिंग्स. इफ एनीबॉडी हियर नॉट डूइंग कॉमर्स बट 12th स्टैंडर्ड आर्ट्स और साइंस, सपोज आपको अच्छा लगे कि कॉमर्स में आना चाहते हो, डोर्स आर ओपन. यू कैन नाउ आल्सो कम बिकॉज ड्यू टू एनईपी एंड इवन बिफोर दैट आल्सो switchable is possible. You can non-commerce people don't mind. I am pulling them to my stream. If anybody wants to join anytime, you can do it. फिर नेक्स्ट में जाओ. कंपनी सेक्रेटरी, यू कैन डू इट. यस प्लीज टाइम बताइए. कंपनी सेक्रेटरी क्या है? आप 12th स्टैंडर्ड का बाद में भी कर सकता है एंड बीकॉम का बाद में भी कर सकता है. कंपनी सेक्रेटरी जो है ना, उसमें लॉ ज्यादा है. ऐसे कोई बात नहीं है, अकाउंटेंसी है, टैक्सेशन भी है, जीएसटी भी है, लेकिन लॉ का इंपॉर्टेंस उसमें ज्यादा रहता है कंपनी सेक्रेटरी में. So if you are suppose आप कंपनी सेक्रेटरी CS पास कर गया, एक भी दिन नहीं रहेगा आपका पास में जो आप अनएम्प्लॉयड रहेगा, गारंटीड. कंपनी सेक्रेटरी पास किया और अनएम्प्लॉयड है, एक भी केस आप दिखा नहीं सकता है. यू कैन ज्वाइन कॉर्पोरेट बिकॉज हर कंपनी का एक कंपनी सेक्रेटरी होना जरूरी है एज पर कंपनीज एक्ट. किस अच्छे से लॉ ने बोल दिया कि कंपनी तुम एक सेक्रेटरी रखो, कंपनी सेक्रेटरी. ऐसे नहीं, कंपनी सेक्रेटरी जो ये पास किया उसको रखो. सो गवर्नेंस, कंप्लायंस, कॉर्पोरेट लॉ, ऑल दिस थिंग्स यू कैन डू इट. क्लिक करो. ऑल दिस थिंग्स यू कैन डू बाय कंपनी. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट्स जो है ना, पहले ICW बोलता था इसको, अभी बोलते हैं CMA. वो बात एक ही है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सो बीकॉम का बाद आप जा सकता है, 12th का बाद भी आप जा सकता है. इसमें BA नॉन कॉमर्स भी जा सकता है, ऐसे कोई बात नहीं, ओपन है. लेकिन नॉन कॉमर्स जाने से आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज अभी थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के उसको आपको उसका लेवल में आना है. और कॉमर्स से जाने से वो तो आप सीख लिया पहले. तो उसमें वो क्या सीखता है? कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट ऑडिटिंग. कॉस्ट ऑडिटिंग, कोई भी कंपनी में अगर कॉस्ट ज्यादा है तो प्रॉफिट कम, सेल कमती हो जाएगा, प्रॉफिट कमती हो जाएगा, राइट. सपोज कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब बहुत छोटा बच्चा है, ट्राइंग टू एक्सप्लेन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि आप इनएफिशिएंट है, ज्यादा खर्चा कर दिया, तो प्रोडक्ट का कॉस्ट ज्यादा हो गया. और कॉस्ट ज्यादा हो गया तो मार्केट में ज्यादा दाम में बेचना पड़ेगा फॉर गेटिंग प्रॉफिट. अगर ज्यादा दाम में मार्केट में बेचेगा तो सेल ही नहीं होगा, कंपटीशन है. सो कॉस्ट को कंट्रोल करना है, यही ये सिखाता है. कॉस्ट का ऑडिट करना है कि करेक्ट है या नहीं. फिर कॉस्ट कंट्रोल, बजट बनाना है. बजट क्या पता है? बजट एक एस्टिमेट होता है कि फ्यूचर में आप कितना किसमें खर्चा करेगा. पहले से एस्टिमेट करो, फिर बजट करो, फिर काम करो. विदाउट प्लानिंग अगर काम किया तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा. गवर्नमेंट भी बजट करता है, हम प्राइवेट भी बजट करता है. देखिए अगर बजट मुझे दे दिया तो उसके 4 दिन लगेगा समझाने में, बहुत कुछ है. मैं जस्ट टच करते करते जाना होगा इधर, क्योंकि टाइम बहुत कमती है, 30 मिनट में पूरा कवर करना है. तो बजट क्या है? ए प्लानिंग फॉर फ्यूचर व्हेन एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटीज. मैं इसे बोलता हूँ प्लानिंग व्हेन क्वांटिफाइड बिकम्स बजट. अब प्लानिंग को बात मत करिए स्टूडेंट, प्लीज डोंट टॉक. थोड़ा प्लानिंग को क्वांटिटी में एक्सप्रेस करके बजट हो जाता है. जो भी है बजट आप जानते हैं,
वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम है। बिजनेस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। बिजनेस डिसीजन मेकिंग क्या है? एक कंपनी कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, कितना प्रोड्यूस करेगा, कौन सा न्यू मार्केट जाएगा, प्रोड्यूस नया प्रोडक्ट क्या करेगा, ये सब डिसीजंस, बहुत सारे डिसीजंस बीकॉम में मिलेगा। ये सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ये करता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बिजनेस डिसीजन मेकिंग करने से एक्सेलेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। अगर आप बीबीए करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए होता है, बीबीए में 12th स्टैंडर्ड आर्ट्स साइंस कॉमर्स कोई भी आ सकता है, एनीबॉडी कैन कम। और बीबीए करना है तो क्या सीखता है, क्या सिखाता है? मैं बोल रहा हूं आपको मार्केटिंग सिखा देगा। यू कैन लर्न मार्केटिंग, यू कैन लर्न ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे करता है, फिर फाइनेंस, फिर यू कैन गो फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, उसमें सिखाता है कि इंटरनेशनल बिजनेस कैसे करता है। अभी सर ने बोला था कि गवर्नमेंट का पास में 10% नौकरी है, ओनली 10% है, सब खुद करना है। तो खुद करना है तो एंटरप्रेन्योरशिप करना है, एंटरप्रेन्योरशिप विद इन अरुणाचल प्रदेश नहीं, यू कैन गो आउटसाइड। ऐसे तो आत्मनिर्भर भारत में मोदी जी क्या बोला था? बी वोकल फॉर द लोकल एंड देन मेक इट ग्लोबल, ये डायलॉग था। बी वोकल फॉर योर लोकल एंड देन मेक इट इंटरनेशनल, मीन्स ग्लोबल। तो इंटरनेशनल बिजनेस में आप भी कर सकते हैं। अभी ये मोहन सर जो बिजनेस कर रहा है, इतना बड़ा बिजनेस और पासीघाट में, आप तो उससे ज्यादा कर सकते हैं, यू विल बी हैप्पी आल्सो, यू कैन मेक इट इंटरनेशनल। लेकिन विदाउट नॉलेज यू कैन नॉट डू बिजनेस, रिमेंबर। आफ्टर a certain point you cannot go in business without proper knowledge, and that knowledge you can get from BBA, and BBA करने के बाद में कुछ भी नहीं करके हम चला सकते हैं, MBA भी जा सकता है। क्लिक करो, आप MBA भी कर सकते हैं, उसका भी ओपन है। यू कैन गो फॉर इकोनॉमिक्स आल्सो फ्रॉम योर स्विचिंग वन इकोनॉमेट्रिक्स, ऐसे है तो उसमें इकोनॉमिक एनालिसिस, पॉलिसी मेकिंग, रिसर्च सब कुछ है, मैं पहले बोल दिया था। अभी इंटरनेशनल कंपनी जो है ना, जितना MNCs, they need market analysis, they should know economics and they should know management accounting, they should know account sector. After all, commerce is an interdisciplinary subject, बोल सकता है, सब कुछ है उसमें, almost सब कुछ घुसाया है interdisciplinary। and अगर इकोनॉमिस्ट बन गया तो फिर भी आपको निर्मला सीतारमण जी बुला सकता है, आपको इतना टॉप में जा सकता है, और छोटा छोटा कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, और अपना काम भी इससे कर सकते हैं। क्या करेगा उसमें? गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर सकता है। यू कैन वर्क इन द गवर्नमेंट सेक्टर, दे विल एम्प्लॉय यू। यू कैन वर्क एज थिंक टैंक, यू कैन वर्क एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, दे गिव फाइनेंस टू द इंडस्ट्रीज, वो सब जाए, यू कैन वर्क देयर आल्सो। एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, एवरीथिंग थिंक ग्लोबल, यू कैन गो फॉर ग्लोबल एनीवेयर। ओनली वन आर्ट, क्लिक करो, ओनली वन आर्ट, एक ही पृथ्वी है, ओनली वन आर्ट। किसी भी जगह में यू कैन गो, बिकॉज व्हाट यू वांट टू बी व्हाट यू वांट टू बी, एंड इफ यू वांट टू बी व्हाट यू वांट टू बी, बिलीव व्हाट यू वांट टू बी। विश्वास को कर सकता है। उसके बाद में चलो देखिए, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, इसमें बहुत सारी चीज मिलता है। ओनली फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में इसमें भी बहुत सारे कोर्स होता है। क्या क्या कोर्स है? चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सारे चीज, वेल्थ मैनेजमेंट, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट। अभी मेरा उधर जो बच्चा है ना कॉमर्स कॉलेज में, बहुत सारे बच्चे हैं ना, दे कुछ लिटिल 1 or 2,000 रुपीज लेके ना, दे इन्वेस्ट इन शेयर्स, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, एंड यू कैन ऑल्सो डू इट इफ यू आर नॉट डूइंग। एंड आपका लिटिल बिट ऑफ सॉफ्टवेयर का नॉलेज चाहिए जो आपका है, बिकॉज फेसबुक, इंस्टाग्राम you use YouTube and all. So with that knowledge, out of your money, you can save, suppose 500 rupees save कर, तो किसी भी शेयर में कोई भी कंपनी का, तो उसमें पैसे इंक्रीज होकर डिक्रीज भी हो सकता है। तो हाउ टू इन्वेस्ट, व्हेन टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट एंड व्हेन टू सेल इट आउट, ऑल दिस डिसीजंस अच्छा तरह सीखना है तो यू कैन लर्न दिस थिंग्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ऑल दिस थिंग्स यू कैन लर्न। नेक्स्ट चलो, एंड उसके बाद में यू कैन गो फॉर लॉ। लॉ आफ्टर कॉमर्स इज वेरी एसेंशियल फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर दो ही सेक्टर है, देखो, इफ यू थिंक प्रॉपर्ली, दो सेक्टर, एक है गवर्नमेंट का सेक्टर और एक है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर छोटा छोटा बिजनेस को आपको नौकरी दे नहीं सकता है,
You can become your own businessman, suppose entrepreneur, okay only. But if you want to big job, you have to go for corporate sector. And law degree will be helping you. And corporate law, business, contract, margin. Margin means 2-4 कंपनी मिलकर एक हो जाता है जो. जैसे few years back 2016-17 में बहुत सारे बैंक मिलकर एक हो गया कॉम्बिनेशन बैंक मार्जर. ऐसे कंपनी भी कभी कभी मार्जर हो जाता है. वो सब में क्या लॉ है, उसमें लॉयर चाहिए. मैं बहुत सारी चीज बोला, यू कैनॉट डू एवरीथिंग एट ए टाइम, यू हैव टू चूज आउट एंड यू कैन डू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. ये सब भी लॉ में होता है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अभी बोलने से बहुत लंबा हो जाएगा. जज बोलता है, सपोज मैंने एक किताब लिखा और आपने उसको कॉपी करके अपना नाम में ले लिया तो चोरी हो गया. तो हाउ टू डील विद ऑल दिस डिजिटल थिंग्स. इससे ज्यादा भी नहीं बोलता हूँ. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में से मेरा बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा. But this is all within the background of those people who know commercial law, corporate law. क्लिक करो. होटल मैनेजमेंट पहले बोल चुका है, गो फॉर होटल. ये सबसे बड़ा नॉन स्मोक इंडस्ट्री बोलते हैं टूरिज्म को. टूरिज्म को क्या बोलते हैं? नॉन स्मोक. यदि इंडस्ट्री में टूरिज्म इंडस्ट्री से स्मोक नहीं निकलता है, धुआं नहीं निकलता है, नॉन स्मोक होता है. जितना टूरिस्ट हम लोग का स्टेट में कंट्री में आएगा बाहर से, इतना हमारा फायदा है. सो टूरिस्ट को मैनेज करने के लिए, उनको सर्विस देने के लिए यू नीड टूरिज्म मैनेजमेंट. यू शुड टूरिस्ट गाइड, यू नो हॉस्पिटलिटी, टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल, रिजॉर्ट, इवेंट मैनेजमेंट. ऑल दिस थिंग्स कैन आल्सो बी लर्न प्रॉपर्ली थ्रू कॉमर्स एजुकेशन. ऐसे वो सीख सकता है. विदाउट लर्निंग यू कैन गो एंड विद लर्निंग यू कैन गो. देयर इज सम डिफरेंस. एंड कंटिन्यू फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल सेक्टर. टूरिज्म जो है ना, होटल मैनेजमेंट फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल सेक्टर बोलता है. ग्लोबल, हर दुनिया का कोने कोने में ये सब है. दुनिया अदर कंट्री ऑल्सो. जो सेक्टर मेरा इधर आ जाओ, द मोमेंट पीपल गो देयर, दे परचेज समथिंग, स्टे देयर एंड इनकम हो जाता है. तो ये होटल मैनेजमेंट का बात बोलो. अब जानने के लिए कोई भी जा सकता है, आप भी जा सकते हैं. मीडिया एडवर्टाइजिंग. मेरा स्टूडेंट, उसका नाम देवाशीष दास, इतना अच्छा नहीं था. एंड जस्ट एग्जाम्पल बोलो, तो बीकॉम में 38% लेके पास करने के बाद में ही वाज क्राइंग, रो रहा था. तो फिर उसको हम समझाया. अभी वो क्या है, वो 38% लेके वो दिल्ली में रहता है. आज सिंगापुर, काल मुंबई, परसों दुबई ऐसे करता है. उसका क्या नौकरी मिला पता है? उसका नौकरी मिला वो एडवर्टाइजिंग में. और उसमें क्या करता है, वो ग्राफिक्स बनाता है. जैसे फॉर ए प्रोडक्ट, इफ यू वांट टू टेक ए 4-second वीडियो ऑफ शाहरुख खान, just think you are doing it. Just think you are doing it. I am giving you a job कि 4 सेकंड और 1 मिनट का वीडियो बनाओ. मुझसे बना लो तो आगे हो जाएगा, और अमिताभ बच्चन से बनाओ. So क्या, what are the things you have to do? You just think that way, and that boy is doing that in all over different countries and celebrities. So you can, you don't know where you will go. It will be there, but what you have, that if you believe that, if you believe entrepreneurship में बोल दिया, start your own business, provide the commerce education में knowledge मिलता है, finance, accounting चाहिए उसमें. entrepreneurship तो बहुत ही, वो कितना बार बोलेगा, बोल ही दिया. entrepreneur, you don't want to do anything, learn some commerce knowledge and go to entrepreneurship. When you go for entrepreneurship, it's a business, no? The Marcus and knows all these things, he studied. But for you people, you have to study and better go there, knowing that whenever you start a business, you should know how to register. Without study, just एक पान का दुकान दे दो इधर में, वो तो कोई भी कर सकता है. लेकिन ये प्रॉपरली एक दुकान है बिजनेस देने के लिए, यू शुड नो वेयर टू गेट द मनी. अब पता है कहाँ से फाइनेंस मिलेगा और कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, कैसे एमएसएमई से लोन लेना पड़ेगा, मीडियम में स्मॉल स्केल से कैसे, क्या क्या बेनिफिट है, तो स्टडी करना है. और सारी स्टडी को कॉमर्स में करता है. ये सारी स्टडी है एंटरप्रेन्योरशिप. तो उसका लॉ क्या है, उसका लॉ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, और ये सब जानबूझ के आजकल बिजनेस भी थोड़ा दूर जाएगा तो उतना आसान नहीं है. You should know, you should have the knowledge. So that's why commerce education is important here also. और कुछ है देखो. And how are the prospects? देखिए हम आपको बड़ा बोल दिया कि कहाँ से कहाँ जा सकता है. आपको बोला क्या क्या है और कहाँ से क्या हो सकता है. आपको मैं बोला सीए होने से क्या करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंट क्या कर सकता है, बीकॉम होने से क्या करेगा, एमकॉम क्या करेगा, लॉ होने से क्या करेगा, बीबीए होने से क्या करेगा, कंपनी सेक्रेटरी होने से क्या कर सकता है. सब कुछ थोड़ा सा आपको झलक दिखा दिया. Whenever you want to know, you can Google it
अब गूगल में करेगा आपको जवाब आ जाएगा। और मेरा नंबर है दीजिएगा, ऑलवेज देयर टू हेल्प यू इफ यू वांट एनी हेल्प फ्रॉम मी। कॉमर्स इनक्रेडिबली ब्राइट। कॉमर्स में इतना समझ के आप भी सपोर्ट करोगे। अब इतना टाइम में जो बोला है 10-15 मिनट्स, ये सुनने के बाद में आई एम श्योर यू शैल सपोर्ट इट। एनीबॉडी अगेंस्ट इट? मैं जो बोला है तो गलती नहीं बोला, मैं जानबूझ के बोला कि इतना ऑप्शन है कॉमर्स में। ऐसा नहीं कि कॉमर्स करो फिर बिजनेस से खोल दो और कुछ नहीं। अभी भी गांव में जाओ, कोई बोलेगा कि क्या लेगा कि कॉमर्स, बिजनेस क्या करेगा तुम, और तो मारवाड़ी लोग करेगा, ऐसे बोलते हैं आजकल भी। ऐसा कुछ बात नहीं, कोई भी कर सकता है, नॉलेज चाहिए। सो बिजनेस एनीबॉडी कैन डू, एंटरप्रेन्योरशिप एनीबॉडी कैन डू, लेकिन उसके लिए नॉलेज चाहिए। सिर्फ कॉमर्स करके सिर्फ बिजनेस ही कोई करना ऐसे नहीं है, मैं आपको दिखा दिया। मैं लर्निंग कॉमर्स यू हैव टू डू दुकान बिजनेस, ऐसा बात नहीं है ना, वो भी कर सकता है। और ये सिर्फ क्या क्या कर सकता है, स्काई लिमिट है क्या? इवन स्काई इज नॉट द लिमिट, करेक्ट? इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। अब सब में बहुत पावर है, सभी में। स्वामी विवेकानंद बोला था ईच सोल इज डिवाइड। आपका सोल, मेरा सोल, सर का, मैडम का, जितना पीपल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वॉट एवर द लैंग्वेज, वॉट एवर द रिलीजन, वॉट एवर एनीथिंग, बट सोल इज प्योर डिवाइन। जो चाहता है वो कर सकता है, अगर चाहने का दम है तो, खुद पे विश्वास है तो। एंड यू आर हैविंग दैट बिकॉज अरुणाचल प्रदेश is something different from other states. I know spiritually. चलो नेक्स्ट पे चलो। यस, प्रोस्पेक्ट क्या है? कॉमर्स करने से फिर से थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। अकाउंटिंग जा सकता है, फिनेंस में जा सकता है, लॉ में जा सकता है, बिजनेस मैनेजमेंट जा सकता है। एंड डिमांड ऑफ कॉमर्स नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली। ये मैं पहले बोल दिया, यू कैन थिंक ग्लोबल। ऐसे नहीं कि इसी पासीघाट में ही सोचो, ऐसे नहीं कि रोइंग में ही सोचो। जितना दूर तुम्हारा इमेजिनेशन जाएगा इतना दूर तुम जा सकता है। एंड दैट इज पैशन। इतना अच्छा से सर ने पैशन समझाया था पहले, और एक सर ने भी पैशन समझाया था, एथिक्स समझाया था। यू बी वेरी मच एथिकल। एथिक मीन्स व्हाट इज राइट यू हैव टू डू दैट, व्हाट इज रॉन्ग यू शुड नॉट डू दैट, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, ऑल दिस थिंग्स। जैसे लंदन में एक एथिकल इंस्टीट्यूशन है, ऑल ओवर वर्ल्ड है एथिकल इंस्टीट्यूशन, एंड यूके में है। यूके इंस्टीट्यूट में एक जो टैगलाइन लिखा है ना, उसमें लिखा है डूइंग बिजनेस एथिकली मेक्स फॉर बेटर बिजनेस। एथिकली कुछ भी कर सकता है तो और भी ज्यादा कर सकता है। तो ये है तो वर्ल्ड इज इन योर हैंड। जहां भी यू कैन इमेजिन, यू कैन गो ग्लोबली नेक्स्ट, यू कैन गो एनीवेयर नेक्स्ट। यस, विद ग्लोबलाइजेशन बिजनेसेस आर एक्सपांडिंग एंड नीड फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल्स एक्सपांडिंग। विद ग्लोबलाइजेशन बिजनेस has a tendency always to grow. हर बिजनेस का टेंडेंसी कि बड़ा होना, बड़ा होना, बड़ा होना। कोई बिजनेस ऐसे नहीं करता कि छोटा हमें रहो। आज बिजनेस का लोकल काम होगा, रीजनल, परसों हो जाएगा नेशनल, उसके बाद में इंटरनेशनल हो जाता है बिजनेस। यहाँ से शुरू होता है। और एंटरप्रेन्योरशिप के बाद आप सोचो, मेरा चश्मा देखा है एवरीबॉडी, ये जो मेरा स्पेक है ना, हाँ, ये बहुत किसी साल में कभी है, किसी किसी का है, स्टूडेंट किसी का है। एक दिन याद करना, सोचो पास्ट में एक दिन तो ऐसा था ना कि चश्मा था ही नहीं, है कि नहीं? फ्रॉम द 7,000-8,000 years बैक तो चश्मा था नहीं, बाद में आया। कैसे है पता है? तब भी आदमी अंधा होते थे, तब भी अंधा होते थे, ब्लाइंड होते थे, चश्मा नहीं होता था उस टाइम में, चश्मा नहीं हुआ करता था। तो इससे हो सकता, मैं इमेजिनेशन कर सकता हूँ, देखो इमेजिनेशन कर सकता हूँ कि कोई एक अंदर से जा रहा था, जाते जाते गिर गया। तो जो गिर गया, किसी और ने देखो गिर गया, देखे चला गया, किसी और ने वो सॉरी देखे चला गया, और किसी और ने इसको पकड़ के उसको अपना घर पहुंचा दिया। और 4 नंबर एक है, तो सारी चीज देख के सोचने लगा कि कैसे अंधापन दूर कर सकता है। एंड ही बिकेम द पर्सन हु इन्वेंटेड चश्मा। समझा? ऐसे होता है, कोई भी प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम से कई सोल्यूशन आ जाता है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। कुछ नहीं है तो उसको निकालने के लिए जो वही इन्वेंशन है। सो देखिए, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट
and the demand is on the rise. कभी घटने वाला नहीं है कॉमर्स का डिमांड. कॉमर्स पास करके कोई बचा नहीं रहेगा. हो सके छोटा बिजनेस करेगा, नहीं तो एडवाइजर तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो सकता है, वो भी हो सकता है. और मे भी कॉमर्स लेके आप यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड ट्रेड में भी आपको नौकरी मिल सकता है एज एन एडवाइजर, हो सकता है. स्काई इज नॉट द लिमिट. नेक्स्ट, स्काई इज नॉट द लिमिट. फील्ड्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट में, कॉर्पोरेट लॉ, हाई पेइंग जॉब्स, इसमें बहुत सैलरी मिलता है. वो गवर्नमेंट इतना दे नहीं सकता है, इतना पैसा मिलता है. कैरियर स्टेबिलिटी, चांस टू वर्क इंटरनेशनल एरिएशन में है. और मैं पहले बोल चुका. नेक्स्ट जो रिपीट, नेक्स्ट हाउ यू प्रिपेयर. अभी 2-3 मिनट चाहिए. सारणी में बोला था सर आप ये भी बताइए हमारा बच्चों को कि कैसे प्रिपेयर करें. हम 2-3 मिनट 2 स्लाइड है. तो लिविंग पेशेंस अच्छा लग रहा है, सुनाई में अच्छा लगता है, आप मन से सुन रहे हैं. कभी भी अब बाद में क्वेश्चन आके पूछेगा, इधर आके पूछ सकते हैं. वेरी हैप्पी. सो कैसे प्रिपेयर करें, ये सारी दुनिया हाथ में है और मैं चुपचाप बैठने से नहीं होगा. आई हैव टू डू समथिंग. कैसे करो, करो कुछ अच्छा कंपनी कैसे करेगा, वो थोड़ा सा कोशिश करता हूं मैं. देखो कॉमर्स का जो कंपटीशन भी बहुत ही फेरोशियस है. अच्छा चीज में तो कंपटीशन हो गई, इसलिए बड़ा कंपटीशन इज फियर्स. इसमें बहुत कंपटीशन. सीए पास करना टफ है, नामुमकिन नहीं है. सक्सेस रिक्वायर्स, ये 3 चीज चाहिए, ये 3 चीज चाहिए. ऐसे नहीं कि कॉमर्स थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया और नोट पढ़ लिया हो गया, ऐसे नहीं. अच्छा से समझो कि अकाउंटेंसी का कैसे जर्नल करता है, कैसे लेजर, कैसे बैलेंस शीट. प्रैक्टिस करो घर में बैठ के. टीचर टीचर्स इन कॉलेज, ओके. आफ्टर दैट यू डू योरसेल्फ आल्सो. यू टेक हेल्प ऑफ यूट्यूब, यू टेक हेल्प ऑफ ऑनलाइन सोर्सेज एंड टीचर्स आर देयर. सो मेनी सोर्सेज आर देयर टू लर्न. तो क्या चाहिए इसके लिए? डेडिकेशन, हार्ड वर्क, एक क्लियर पेन, एक प्लान होना चाहिए क्लियर. सिस्टर प्लीज डोंट टॉक, थोड़ा टाइम है. सिस्टर प्लीज डोंट टॉक, प्लीज डोंट टॉक. ओके, क्या क्या चाहिए? डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड क्लियर प्लान. ये सब चाहिए. बिकॉज फोकस ऑन फंडामेंटल सब्जेक्ट. 11-12 के बच्चों के लिए मैं ये सब सजेस्ट करता हूँ क्योंकि मैं अकाउंटेंसी पढ़ाता हूँ. एंड अकाउंटिंग छोड़ के जो मैनेजमेंट, फाइनेंस ये सब है ना, उसमें मैं रिसर्च का काम करता हूँ. मेरे कॉलेज में अकाउंटेंसी ज्यादा पढ़ाता हूँ. तो मैं देखा है ये चारों सब्जेक्ट जो है अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ये 3 सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा से पढ़ो. ऐसे नहीं कि यदि एग्जाम में नहीं आएगा ये छोड़ो, डोंट डू इट, डोंट डू इट. ये एग्जाम में आएगा, ये नहीं आगे से मत करो. मेरा फॉर्मूला हो, सब कुछ पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, क्लियर हो. क्लास में टीचर से समझो, ऐसे समझो कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करो. कुछ एक कॉन्सेप्ट है, सार मैडम ने पढ़ा दिया, अब समझा नहीं, एट एनी कॉस्ट उसको समझने का कोशिश करो. यू आस्क योर टीचर, नहीं तो घर में पढ़ो, बट मेक इट क्लियर. दिस इज द फाउंडेशन ऑफ 12th स्टैंडर्ड. प्लीज रिमेंबर. इसमें गलती उल्टा पुल्टा हो गया ना, बीकॉम में प्रॉब्लम हो जाएगा. यू कैन नॉट गो अहेड. अगर कभी डेबिट क्रेडिट पता नहीं है, रूल्स, गोल्डन रूल्स, एक अमेरिकन और एक इंग्लिश. अमेरिकन में है एसेट, एक्सपेंस, रिमेंबर, एसेट, एक्सपेंस, कैपिटल, रेवेन्यू एंड लायबिलिटी. लायबिलिटी ये 5 है अमेरिकन अप्रोच में. तो मैं तो ऐसे सिखाता हूँ. मैं एक लाइन में आपको सिखा देगा, रिमेंबर. और डेबिट क्रेडिट भूल जाता है ना. एसेट एंड एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, बाकी सारे उल्टा. याद रख देना, एसेट एंड एक्सपेंस इंक्रीज होने से डेबिट होता है, बाकी सारे उल्टा. इससे मैं एक लाइन में सिखा दूं बच्चों को. यू आल्सो रिमेंबर, इट इज नॉट अकाउंटेंसी क्लास, सो इट कैन नॉट टेक मच टाइम. इफ एनीबॉडी नीड्स यू कैन कांटेक्ट मी विद माय नंबर. मैं तो कोई यूट्यूब मेरा बना हुआ वीडियो भेज देगा, कैसे इजीली याद रख सकता है. तो अपना फॉर्मूला है कुछ. फिर और जो है क्या, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड इंग्लिश में है ना, उसको मैं कैसे सिखा दो. कम्स इन डेबिट, गोज क्रेडिट. मैं सिर्फ सिखा देते गाना बना दिया. डेबिट एक्सपेंसेस, लॉसेस, क्रेडिट गेन्स, मैं गाना बना दिया. डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर, मैं गाना बना दिया. इतना पढ़ा दिया. तो बच्चों को गाना सुन लेता है. रियल अकाउंट क्या होता है? कम्स इन डेबिट, गोज क्रेडिट. और क्या है इसमें? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. लुक अप इसलिए हो गया था. And debit the receiver, credit the giver. And let's go, debit the receiver, credit giver. Anyway, I make lot of parts with accounts with my students.
I share it with you. But please give much importance to this subject about the economics and business studies. कोई भी पहले आगे सीखना चाहते हो, अच्छा करके सीखना चाहता हो, ऐसे नहीं अच्छा करके, तो ये सब आप अभी ध्यान देना। 11-12 में 11 में कुछ सीख नहीं पाए, 12 में वो भी पढ़ लो, वो भी सीखो। Sometimes find a minute, but if you want to sky, touch the sky like that. Please do this. This is my advice at the end. क्लिक करो। प्रिपरेशन में ये सब चाहिए। Stay updated with current affairs, especially this financial world. अभी सार लोग ने भी बोला था, अभी सार ने बोला था, मोहम्मद साहब ने बोला था, उनका पेपर है और थोड़ा है, ज्यादा नहीं। अच्छा, जो ऑनलाइन सोर्स के बाद यूट्यूब, गूगल, ये सब तुम्हारा अपने हाथ में है। यू यूज दोज थिंग्स फॉर योर स्टडीज। कुछ भी चाहिए तो उसमें मिल जाता है, वो भी करो, टीचर भी गाइड करेगा, ठीक है, ये सब करो एंड अपडेटेड रहो। डेवलप एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। यानी पीछे में जो लिखा है ना, ये एनईपी में है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये सब पॉइंट लिख दिया है, जैसे होना चाहिए एजुकेशन में। ये सब मैं पिकअप किया इसमें। देखो क्या होना चाहिए, एनालिटिकल। ये ऐसा नहीं क्यों है? Why does sun rises in the east? अरे sun rises in the east, इसका नेगेटिव में कोई बोल सकता है? Sun rises in the east, इंग्लिश में कोई बोल सकता है डिबेट में? Anybody? एक बार मेरे डिबेट में मुझे बोला था, ठीक है इतना डिबेट करते हो तुम कॉलेज में, इसका इंग्लिश में बोल के दिखाओ। बोल के था, बोलेगा? टॉपिक था कि सन राइजेस इन द ईस्ट। डिबेट कोई फॉरन में कोई इंग्लिश में था, मुझे बोला तुम इंग्लिश में बोलो। कोई है इधर बोल सकेगा? देखो उस टाइम में मैं ऐसे थोड़ा सा बदमाश था, तो क्रिटिकली कैसे में बोला, डिबेट में बोला सर सन राइजेस इन द ईस्ट उसके इंग्लिश में, ठीक है सर। मैं ऐसे क्या स्टेज में गया, ऐसे डिबेट करते ना, ऐसे पोडियम रहता है ऊपर में, रेस्पेक्टेड मिस्टर स्पीकर सर, द मोशन बिफोर द हाउस इज द सन राइजेस इन द ईस्ट and I strongly oppose the motion because the sun does not rise at all. It is the earth that moves around the sun. Galileo Copernicus, everybody proved it is the earth that moves around the sun. How can sun rise? Sun does not rise. It is the earth that moves. Example दिया, ये मेरा एग्जाम्पल है। मैं कुछ गलती बोला स्टूडेंट, साइंस का स्टूडेंट। Sun does not rise at all. It is the earth that moves. मैंने इंग्लिश में बोल दिया तो ये एक एग्जाम्पल चालाकी से बोल दिया, और कोई गलती भी बोल नहीं सकता मुझे। डियर स्टूडेंट्स, मैं क्यों बोला पता है? ये भी एक पॉइंट था, मैं जोक बोला लेकिन करेक्ट भी बोला। लेकिन हर चीज को आप क्रिटिकली एनालाइज करो। कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज है कि एंटरप्रेन्योर है, अकाउंटेंसी है, पार्टनरशिप है, कंपनी, अरे एनालिटिकली उसको देखो ठीक है या नहीं। तो वही है एनालिटिकल थिंकिंग एंड डिटेल ओरिएंटेड अप्रोच चाहिए। डिटेल में जाओ हर कुछ को, और जाने करके छोड़ दिया, लेजर नहीं किया, लेजर करके छोड़ दिया, टाइम मैंने सार ने सिखाया नहीं, बैलेंस शीट पर आएगा नहीं, वो सब छोड़ो, सिलेबस में आगे पढ़ो। अगर ये सपना साकार करना चाहते हो सिस्टर प्लीज, अगर साकार करना चाहते हो, टेक एडवांटेज ऑफ इंटर्नशिप एंड ऑनलाइन कोर्सेज। इंटर्नशिप अगर आया नहीं, हम लोग को अगर बीकॉम में आ गया, तुम लोग को भी थोड़ा प्रोजेक्ट है शायद, तो दुकान में जाके जो रिपोर्ट बना के कुछ रिसर्च पेपर बनाना पड़ता है, डिसर्टेशन, तो उसमें आ जाता है, बीकॉम में मिलेगा। अच्छा, सीक गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग, ये भी एक सजेशन दिया, ऐसे करियर काउंसिल इधर तो हो गया, थोड़ा और भी करो, किसी ने करता है तो ज्वाइन करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड टीचर, पेरेंट्स एंड प्रोफेशनल से बात करो, थोड़ा सीखने का कोशिश करो, क्लिक करो, सीखने का कोशिश करो। कंक्लूजन में, कॉमर्स एजुकेशन इज जस्ट learning theories and concepts, not just learning theories. It's about building practical knowledge, critical thinking and skills, and commerce stream can lead you wherever you want to go. Click. Wherever you want to go, click. Commerce stream can lead you. Click, 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 click. Start preparing today. आज प्रिपेयर शुरू करो, जैसे आप कर रहे थे ना, उससे थोड़ा ज्यादा, थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा हटके। आज से क्या करेगा? स्टार्ट प्रिपेयरिंग, फोकस, डिटर्मिनेशन चाहिए, मकसद लेना है, उसका लिए मेडिटेशन भी चाहिए आपको, एंड सीक गोल्स, सेट गोल्स ठीक करना चाहिए, एंड एक्सप्लोर द योर इंटरेस्ट, कहाँ क्या है। रिमेंबर दैट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एफर्ट यू पुट टुडे विल डिफाइन योर सक्सेस टुमारो। नेक्स्ट, आई थिंक कुछ नहीं है, एक बात बोलना चाहता हूँ जस्ट,
टुमारो का बात है सर, जस्ट लास्ट 1 मिनट। टुमारो का बात है, टुडे की आर प्रेजेंट, यस्टरडे पास्ट। पास्ट हम चेंज कर नहीं सकते हैं, राइट? एंड टुडे फ्यूचर वी हैव टू वर्क, टुडे प्रेजेंट वी हैव टू वर्क, एंड टुमारो क्या है? फ्यूचर। अच्छा एक बात बोल दो, फ्यूचर निश्चित है ना अनिश्चित है? फ्यूचर सर्टेन है और अनसर्टेन है। अनसर्टेन है, फ्यूचर अनसर्टेन है ना स्टूडेंट्स? फ्यूचर अनिश्चित है, अनसर्टेन है। किसने सिखाया? घर से, बाहर से, स्कूल से, कॉलेज से, अपनों से। फ्यूचर अनसर्टेन है। लेट मी उसका एगेंस्ट में भी आदमी डिबेट करेगा। सान नगेस इन द ईस्ट का एगेंस्ट में डिबेट करके मैं सक्सेसफुल हो गया। देयर आर 2000 स्टूडेंट्स आई थिंक मोर देन दैट। कोई अपोज नहीं किया मुझे। इसका एगेंस्ट में बोलता हूं बिफोर आई गो देयर। फ्यूचर अनसर्टेन आपने बोल दिया, ये रॉन्ग है। जोकिंग नहीं करो। जोकिंग करने से लेफ्टिनेंट बोर्ड से मुझे कभी बुलाएगा नहीं, इधर जोकिंग करने से बहुत बड़ा नहीं है। फ्यूचर इज एब्सोल्युटली सर्टेन। फ्यूचर इज एब्सोल्युटली सर्टेन टू हैपन, बट व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर दैट इज अनसर्टेन। कैसे? आज कितना तारीख है? 18। 100% श्योर टुमारो इज 19 इज कमिंग। अभी 2024। 100% श्योर 2025 कमिंग, 2030 इज कमिंग, 2047 इज कमिंग। 100% इज श्योर विकसित भारत 2047 इज कमिंग। फ्यूचर इज सर्टेन टू हैपन। केवल अनसर्टेन है। अगर फ्यूचर अनसर्टेन होगा देयर वुड बी नो प्रॉब्लम। कोई प्लानिंग का जरूरत नहीं होता। फ्यूचर इज एब्सोल्युटली सर्टेन टू हैपन, बट व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर दैट इज अनसर्टेन। एवरी उल्टा बोल दिया। Now, last sentence. Since future is certain, मान लो तुम लोग, since future is certain, so we think for future, dream for future, work for future, do everything for future, so the future comes to our favor. है कि नहीं? क्या गलती बोला? फ्यूचर निश्चित है, इसलिए फ्यूचर के लिए प्लान बनाओ, काम करो, कुछ भी करो, सब कुछ करो फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर को अपना अपना बेनिफिट में लाना है। थैंक यू वेरी मच। मे यू ऑल द बेस्ट। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। लॉट्स ऑफ सक्सेस। हम लोग में जो एनर्जी था अभी, एंड थैंक यू सो मच सर, आपने सेशन लिया आज का, एंड इनकी एनर्जी देखिए। सक्सेस तो यही है कि लोग जगे हुए लंच के बाद। दैट इज इन इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट। And sir, I would now request, and I hope all of you enjoyed the session. If you have any doubts, I'll provide you the email ID of the sir. आपका email ID अगर मिल सके, you can email sir and ask your doubts future में भी, when you have career के बारे में कुछ भी कॉमर्स की फील्ड में you want to know. ये नहीं करना है, ये चलेगा। दिस इज अ विक्ट्री साइन, ठीक है ना? एग्जाम के बाद ये होता है, एग्जाम से पहले नहीं। ओके, थैंक यू सो मच सर। They have shown keen interest in knowing all about these things, and I'm sure the career guide